हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल वीबीए जूनियर। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ग्लास प्रिज्म क्या है, ये किस टाइप का होता है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखिए ट्रायंगुलर फेस, और ठीक इसी के अपोजिट दूसरा ट्रायंगुलर फेस, और साइड में ज़रा देखिए 1, 2 और ये 3। मतलब प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है विच हैविंग 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 ऑपोजिट ट्रायंगुलर फेसेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू दिस ग्लास प्रिज्म। हम लोग अपने पर्पस के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और एक्चुअली वह जो ट्रायंगल होगी इस ग्लास प्रिज्म की आउटलाइन होगी, और उसी ट्रायंगल पे इसी पोजीशन में ग्लास प्रिज्म रखी जाती है एक्सपेरिमेंट करते समय। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन इक्विलैटरल glass prism. This is equilateral glass prism. Equilateral means this angle 60, this angle 60, this angle 60. This face refracting face, this one refracting face, this one refracting face. तो मानते हैं कि हमारे पास कोई लाइट रे है ऐसे OP, P इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, OP इंसिडेंट रे। अब मैं P पे एक नॉर्मल ड्रॉ करने वाला हूं। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होगी जो कि P से पास करेगी और AB से 90 बनाएगी, AB से 90 बनाएगी। This one MN is the normal at P to the interface AB, and this angle is called angle of incidence I. Since light ray traveling from air to glass, it will bend towards the normal. Actually, in the absence of this glass prism, the light ray goes straight along its own original direction. अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होती तो उस सिचुएशन में ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ये सीधे निकल जाती, ऐसे बिना किसी डेविएशन के ये सीधे आपका निकल जाता। We know that light travels along a straight path in the same transparent medium. लाइट की बेंडिंग तभी होती है जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो बाउंड्री पे लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक, यहां पे बाउंड्री AB बाउंड्री है, AB के इधर ग्लास, AB के इधर एयर है और AB के दूसरे साइड ग्लास है। लेकिन यहां पे ग्लास तो है, ये ग्लास प्रिज्म है आपका, तो फिर लाइट रे का बेंडिंग होगा ड्यू टू चेंज इन स्पीड, और वह लाइट रे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि बिकॉज लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम rarer into denser medium, it will bends towards the normal. तो नॉर्मल ये है, ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, तो ये बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ। ये बेंड हो गई, ये मान लीजिए कि क्यू है। तो PQ इज द रिफ्रैक्टेड रे, OP इंसिडेंट रे।
angle between refracted ray and normal, this is called angle of refraction, R1 suppose. Now I am going to draw the normal to the interface AC at the point Q. ये नॉर्मल है, तो फॉर दिस इंटरफेस AC this angle will be angle of incidence. Suppose this is R2. Again this ray PQ traveling from glass to air, and if there will be no interface like AC, then in such case this refracted ray PQ will goes along this direction, but since there is a change of medium here, light traveling from glass to air, denser into rarer, that's why it will moves away from the normal, like this one. QR is the emergent ray, OP incident ray, PQ refracted ray. Okay, so this one S here. Now the question arises that while passing through this glass prism, how much angle of the light ray has been bent? To get the answer, what we should do? We should produce this emergent ray along backward direction. This one. Now this angle will be the angle of deviation delta, and suppose this is L and this is V. This point is a V here, this point. Please pay attention. Angle OPM, angle between incident ray and normal. This is called angle of incidence, I. And this angle BAC, this is angle A, and this is called angle of the prism. And this I is called angle of incidence. And this angle, this one, angle QPN. This is angle R1, and this is called angle of refraction. And this angle PQN, R2, angle of incidence. Please, OP incident ray, PQ will be refracted ray for this interface AB, but the same ray PQ will be incident ray for this interface AC. That's why this angle is the angle between this normal MN and refracted ray PQ. That's why this angle QPN is called angle of refraction. The same ray PQ is incident ray for this interface AC, and SQN is the normal. Therefore, this angle PQN, that is R2,
called angle of incidence, and angle ASQR, SQR, this angle, this is the angle between normal and emergent ray. That's why it is called angle of emergence. Angle of emergence. And this QR is called emergent ray. Emergent ray. So children, actually when a ray of light traveling from air to glass, it will bend towards the normal, and then glass to air, it will move away from the normal. This angle, this one is called angle of prism, this one is called angle of incidence, and this angle is called angle of emergence, E. And there is a certain relation between angle of incidence, angle of emergence, angle of deviation, and angle of prism, and that is I plus E is equal to A plus delta. Whatever will be the angle of incidence, the sum of angle of incidence and angle of emergence will be equal to the sum of angle of prism and angle of deviation. In the case of minimum deviation, first condition, PQ, refracted ray, will be parallel to base BC. This refracted ray, this one will be parallel to this base of the prism. And second condition, delta minimum, means this angle of deviation will be minimum. And in that case, twice the angle of incidence minus angle of the prism, this one, should be equal to angle of minimum deviation. And refractive index of the material glass prism, mu, is given as sin A plus delta minimum upon 2 whole divided sin A by 2. ओके, एक बात ध्यान देने वाली है बच्चों, यहां पे हमने इस डायग्राम में PQ को पैरेलल दिखाया है BC के, तो हमने जो डायग्राम स्केच किया है मिनिमम डेविएशन वाली डायग्राम स्केच किया है। सही मायने में PQ बेस के पैरेलल हो भी सकता है, पैरेलल नहीं भी हो सकता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए, मान लीजिए हम दो लाइन खींच रहे हैं, ध्यान समझिएगा, OX और ये है आपका OY। X पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और Y पे एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन को इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले आपने 30 लिया, फिर 35, 40, 50, 45, 50, 55, 60, मतलब आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं तो ये एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू धीरे धीरे घटेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस तक ही ऐसा होगा।
उसके बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो फिर ये एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ना चालू करेगा। मतलब यहां पे इस कर्व के, ये आई डेल्टा कर्व है, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका ये है, इस पार्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने पे एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा। देखिए ग्राफ नीचे जा रहा है, और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान से समझिएगा। एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज किया, जितना उसको डिक्रीज होना था हो गया, उसके बाद वो बढ़ना चालू करेगा। तो अगर आप यहां से एक लाइन खींचेंगे x के पैरेलल, तो यहां पे कहीं कटेगा, तो ये जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू विल बी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये वैल्यू। तो इन द केस ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, this refracted ray PQ will be parallel to base of the prism. क्लियर है? अच्छा, और उस केस में ये जो डेल्टा मिनिमम होगी, ये जो एंगल है, डेविएशन ऑफ द लाइट रे फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म, दिस डेल्टा इक्वल्स टू 2i माइनस ए, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसका डबल माइनस ए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा। ये किस केस में होगा? जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का केस बनेगा। और ये म्यू की वैल्यू है, ये जो ग्लास प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है उसके लिए म्यू की वैल्यू है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम 0.2 होल डिवाइडेड साइन a 0.2। लेकिन ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा, बात फिर समझिएगा, चाहे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन केस हो या ना हो। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि एंगल ऑफ डेविएशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे करता है। फिर आपका कलर और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट यूज्ड, मतलब विब ग्योर में आप किस कलर की लाइट यूज करते हैं इंसिडेंट रे के रूप में। मतलब वायलेट करते हैं, इंडिगो करते हैं, ब्लू करते हैं, ग्रीन करते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, किस कलर की लाइट आप इंसिडेंट रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उस पे भी डिपेंड करेगा ये एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर ऐसी लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ कम है, जैसे वायलेट की वेवलेंथ कम होती है इन कंपेरिजन टू रेड, तो फिर एंगुलर डेविएशन वायलेट का ज्यादा होगा। ये आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट में समझ सकते हैं। इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जब किसी लाइट रे को आप पास कराते हैं प्रिज्म से और उसके आगे अगर आप एक व्हाइट स्क्रीन रखते हैं तो आप देखते हैं कि स्क्रीन पे 7 कलर्स की एक बैंड बनती है। वायलेट कलर सबसे नीचे होता है, मतलब वायलेट की डेविएशन सबसे ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू रिमेनिंग कलर्स, और रेड का सबसे कम होता है। तो स्पेक्ट्रम जब भी बनता है तो वायलेट कलर सबसे नीचे होता है और रेड सबसे ऊपर होता है। मतलब वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है और रेड का सबसे कम होता है। ठीक है, और फिर ये जो ग्लास प्रिज्म है किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि ग्लास प्रिज्म बना है फिलेंट ग्लास का या तो फिर क्राउन ग्लास का, तो फिलेंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और क्राउन का कम होता है इन कंपेरिजन टू फिलेंट ग्लास। तो मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगा? तो द प्रिज्म मेड अप ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस produces greater deviation than the prism made up of lower refractive index। ठीक, और फिर इस एंगल पर भी डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पर भी करेगा। तो
3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ डेविएशन, क्या क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, और आपका मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, और फिर आपका एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू दिस रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल अवश्य हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।